बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का थीम है कि बजट आ चुका हुआ है, लेकिन साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और मज़दूर की तनख्वाह 40,000 रुपये कर दी गई है। और इस बजट में आम आदमी के लिए, मैं पंजाब के बजट की बात कर रहा हूँ, क्या रखा गया है, आम आदमी कितना खुश है, ये मैं आम आदमी बेहतर तौर पे बता सकेगा। जिन्नी भी वाम तमाशगीर है ना, ये रोडां ते निकले अपने हक वास्ते, ये सारी वाम निकले अपने हक वास्ते। आज जट भी निकलूगा, पहली गोली जट खाऊगा। देखदा मैं किवें नहीं हक मिलदा, हक भी मिलूगा ते सारा कुछ मिलूगा, हक भी मिलूगा, सब कुछ साडा हक 21 अक्तूबर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਮੀ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, दुआ करो उन्होंने वास्ते, अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती सेहत देवे, पर मुल्क ना दे आजो, पर मुल्क ना दे आजो। ये जट कहंदा वा मैं तो मर जाना, शायद तुहाडे चों कोई जींदा रवे। ਇਹ ਗੱਲ याद रखियो, अद्धे ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ मुल्क वेख गया, तुसी भी अखां खोलो को घरे जाके वेख्या करो। ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, शायद दूसरे तीसरे गलत गल करदे होण जी, कदी कदी कोई सच गल कर दिंदे आ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਤਿਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਈ ਤੂੰ, ਇਹ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਊਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਊਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੈਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ 200-250 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਘਰ ਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਬਿਹਤਰੀ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਆ, ਇਹ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਅਸੀਂ। ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਆ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ, 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ?
ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਘੋਟ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਕੜ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਗਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਈਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਟੀਜ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਲਾਏਗਾ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ 20,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ 30,000 ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚ ਲੈ ਲਈਏ। 100 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਰੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਘਟਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣੀ ਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈਦਾ, 8 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਰੇਟ 2200 ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ 8000 ਨੂੰ ਆਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 10-10 ਰਕਸ਼ੇ 20 ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਲੈਣਾ 'ਚ 3-3 ਘੰਟੇ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਟਮਕਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਹਯਾ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਇਹ ਸ਼ਦਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਦਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਵੋਟ। ਪੂਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਵੋਟ। ਭਟਕ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਕਿਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕਿਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੋ। ਆਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ,
मियाँ अपने आप ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਵਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਨੇ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਰੀਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਵਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 100% ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਗਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਦਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ 2000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ 100% ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ हुकूमत लेवल पे इंजॉय हो रहा है बस। सर आप कह रहे हैं ये जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं ये डेली काम करके भी कर्जई हो रहे हैं? पूछो इनसे कसम दे के पूछो नहीं हो रहे तो आप कर्जई हो रहे हैं? ऐसे ही आप हो रहे हैं? ऐसा ही है। आप हो रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हो रहे हैं? ये हुकूमत लेवल का काम है। सारी जगह गटर सड़कें नई सड़कें बनी खोदती यार लोग आगे बरसातें आ रही है लोगों ने गिर के मरना है यही होना है। हमारे मेन बाजार नवे बने में दोबारा खोद दिए इन्होंने ग्रीन टाउन के वो बनाने वाला वजह क्या कि आप कमा भी रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं घर भी नहीं बैठ रहे फिर भी कर्जई हो रहे हैं ये भी बताएं। कारोबार ही नहीं है अगर एक दिन कमाते 4 दिन वेले वो पैसे और कर्जा चढ़ जाता बंदे पे यही हालात है। ये सब बहन से पूछो कोई बंदा भी खुशहाल है। ये तो हुकूमत तो कह रही है पाकिस्तान में 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। ये इंडस्ट्री लेवल का सीजन का दिन है तो दुकान परांतर रोड पे आप विजिट करें कारें भाग रही वेले हैं लोग काम ही नहीं है बिल्कुल वेले हुए हैं और ये जितने भी चेहरे हैं ना ये सब मुरझाए हुए हैं सब कर्जई हैं। इजी पैसा जायज का इधर से सूद पे लेके लोग चल रहे हैं ऐसे ही है। एक सेकंड ये मैंने बता 40,000 रुपया ईद पे लेके घर का खर्चा चलाया 44,000 रुपया देना है। मैं दुकानदार हूँ ये नेट पे निकालने भी निकाल देता हूँ मैं आपको। ये हालात हैं क्या करें डाके डालें ये देखें 40,000 भाई एक सेकंड मजबूरी में लेता है कोई शौक से सूद पे पैसे लेता है। ये 46,000 अब मैंने देना है। ये हालात है हम लोगों के क्या करें बच्चों की जो जरूरत है जिंदगी पूरी नहीं करनी। तो ईद पे हमने सूद पे क्यों कर्जा लिया अल्लाह के बंदे माजरत के साथ? तो सर क्या करते मुझे ये बताएं ईद के जो आप एक चीज समझें ईद के 4 दिन नहीं होते ईद से 10 दिन पहले काम बैठ जाता है ईद के 10 दिन बाद 20 दिन की ईद होती है हमारी ठीक है 10 दिन पहले सीजन जो गाहक होता है खत्म हो जाता है कस्टमर कोई भी नहीं आता ईद के 10 दिन बाद मतलब 20 दिन के बाद काम चलना होता है ये हालात और काम चल ही नहीं रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। अब आपका 46,000 कर 46,000 6,000 रुपये मैंने देना है ऊपर। अब आप इस पोजीशन में हैं कि दे दें या नहीं बिल्कुल नहीं है यही टेंशन है घर जाने को दिल नहीं करता परेशानी है हर बंदे मैं अपनी कोई अल्लाह माफी दे वो नहीं पेश कर रहा है ये सब परेशान है यार कोई बंदा खुशहाल नहीं है इधर। घर जाने को क्यों नहीं दिल करता? सर घर जाएंगे खर्च अखराजात 2 किलो दूध लेके जाना है
चीज़ें लेके जानी है, घर जाते हुए 1000 बार मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाना है, जेब में अगर 1000 रुपया और घर 2000 या 3000 चाहिए, क्या करेंगे आप? जी बताएं। हम लोगों का माइंड जब तक सही नहीं होगा, पुल बनाया, मोटरवे बनाई नवाज शरीफ ने या जिन्हें भी बनाई, वो हमारा पैसा है। जब तक कौम को ये शौक नहीं आएगा, हम ऐसे टूटे खाएंगे। हम जिसको भी कहते हैं ना उसको चुक देते हैं। ऐ मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई या यादगार सोना बनाया नवाज शरीफ ने बनाया, और भाई जिनने भी बनाया पैसे इन लोगों के लगे, हमारे लगे हैं। ये हमें ये चीज़ नहीं पता, हम इस पे अवाम लड़ पड़ती हैं। देखो ये लॉर्ड पेरिस बन गया है और हमारे पैसों से बना है, इन सब भाइयों के पैसों से बना है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आम आदमी के एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो रहे? नहीं हो रहे यार, बिल्कुल नहीं हो रहे, सब परेशान है। हकीकत कह रहा हूँ मैं, सियासी चमका नहीं रहा, जो दिल की बात है। मुसलमान हूँ, मोहम्मद अली मेरा नाम है, दिल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा, हालात बिल्कुल ख़राब है मुल्क के, बिल्कुल। मैं शुगर पेशेंट हूँ, यकीन करो टेंशन इतनी होती है कि यार खुशहाली मुल्क में आए, सब बच्चे को दूध के लिए पैसे नहीं होते लोगों के पास। हकीकत बात आपको बता कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। एक्टिव हैं, काम करते हैं? लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक फोटोकॉपी का काम कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, लेकिन कोई हालात नहीं है। सर जब एक शख्स का घर जाने को दिल ना करे और आप कह रहे हैं हर दूसरे शख्स की हालत है, पूछो इनसे यार, ये सब खड़े में अगर दिल से कोई कसम खा के कह दे कि वो कर्जा ही नहीं हो रहा, मैं जूतियां खाऊंगा इधर। ये खिदमत करते कि हम रोटी चीनते ना, जिधर रेड़ी लगाते उसको उठाओ, जिधर किसी का खेमत है वो कह रहे इसको उठाओ, यही खिदमत करते ना। एक सेकंड, यही खिदमत करते। एक सेकंड, तुम्हारा घर में बाजी माँ बहन है ना, मेरा घर में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र घर में कोई अल्हम्दुलिल्लाह। चीज गलत जगह पड़ी हो वो साफ करता है ना। ये पंजाब की माँ है, ये कहती है मैंने पंजाब को साफ करना है। साफ करने, लेकिन गरीबों से साफ करने ना, चीज उसे साफ नहीं करते। वो सोचो गरीबों से साफ करते। अभी इसने जो बजट दिया है, तुम इस वक्त 50 रुपए में भी ना, मेरा ख्याल है तुम 3 टाइम का खाना खा सकते हो। मियां मुश्तबा शजौर-ए-मान साहब के तारीखी अल्फाज है कि गुर्बत खत्म, नवाज शरीफ का विजन पंजाब में आ गया है, अब खुशहाली का दौर है। गुर्बत खत्म नहीं हो गया, गरीब खत्म हो गया। सोच लो जरा, गरीब खत्म हो गया, मर रहे ना इसलिए गुर्बत खत्म हो गया। क्या हो गया आपको? किस चीज का बजट? उधर जो है ना, मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का मिसाल दे रहा होगा ना, 1000 बजट हो लगाते ना, पीछे से जो है ना 2000 का टैक्स लगाते, ये बजट होते? बजट ऐसे होते? कौमें तरक्की करने के लिए टैक्स नहीं देती क्या? अच्छा, 1000 का बजट 2000 टैक्स, ऐसे कौन में तरक्की करेगा? वो खुद ही तरक्की कर लेगा, गरीब तो नहीं कर सकते। उसने दिपाई बजट कितने अलाउंस किया, वो दूसरे के, और हमारे लिए 10%। 10% का क्या होते? 1000 के पीछे 100 रुपए। बस लगाता हाँ, वो भी सोचो ना, वो बजट का पैसे रखते। वो कह रहा भाई जब तक बाहर पैसे है मुल्क खत्म नहीं, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर मैं आपको- मेरा बात सुनो, सालाना कितने किस्त देते हो IMF को? कितने देते हैं सालाना? आधा बजट तकरीबन सूद और कर्जों की अदायगी में चले जाता है। 8,000 9,000 इसलिए तो आपके कह रहे हो कि गरीब खत्म होते, गुर्बत खत्म नहीं होते पाकिस्तान में। अल्लाह ने हर बंदे को दिमाग दिया, हम लोगों के वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा तालीम भी नहीं है, जाहिल भी है, फिर भी हमें पता है कि मुल्क किस तरह का चलते। अल्लाह ने इतना शऊर दिया, शऊर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हें आज एक नसीहत करके जा रहा हूँ। बोलो बोलो। आइंदा पाकिस्तान के हालात समझने हैं ना, भाई अता तारर, आपी मरियम औरंगजेब, आपी अजमा बुखारी, आपी हिना परवेज भट्ट, इनके लेक्चर सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। नवाज शरीफ ने किया कि मैंने मुल्क को गुर्बत से निकालने ना, वो इधर से जो कटा करते हैं ना, वो जाके उधर लंदन में प्लाट खरीदते। वहाँ पाकिस्तान की बात करता है, वहाँ आलम इस्लाम इधर आ जाओ, इधर बात करो पाकिस्तान का। जी नंबर नहीं इधर है उसका, उस इधर का नेशनलिटी है और जाके उधर लंदन में छुपा हुआ है। ये कौन सा मुल्क है? वो कैसे बात करवाएगा उधर से? और नवाज शरीफ तुम्हें अपना बेटा समझते हो, उससे नहीं, प्यार मैं उसको करो। मानता नहीं हूँ, मैं उसको बाप मानते ही नहीं। नहीं, बेटों की तरह समझता है, नहीं। वो तुम्हारे लिए तकलीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए तकलीफ नहीं, मैं खुद ही मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ ना, इधर 14 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 1500 रुपए हलाल कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा उसको कोई जरूरत नहीं है, अपना बीमारी ठीक है? कोई जरूरत, अल्लाह इतना बढ़ाएगा कि उसको पता चल जाएगा।
लाला बस कर दे जज्बात में ना, जज्बात में नहीं हो ये ना भाई, शुक्री का नहीं, शुक्र का मुकाम शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर ऐसे लीडर आ गए हैं। शुक्र कर रहा हूँ, खुद ही कमा रहा हूँ। लीडर एक था वो जेल में है, और चल फिर बस आगे आ वो गए। जेल में है। एक ही लीडर था। लीडर और गिद्दड़ में फर्क होते, जैसे कोते और मोटरसाइकिल और साइकिल में, जैसे कोते और घोड़े में फर्क होते हैं ना, ऐसे लीडर और गिद्दड़ में भी फर्क होते। लीडर एक ही होते हैं, वो जेल में बैठा है। जो बाहर बैठा वो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा रहा है, वो इंडिया को शिकस्त दे रहा जो है। इधर बैठे होते वो डिपार्ट होने के बचाए है। वो नहीं है कि जब उसका हुकूमत आएगा तो वो सारा बीमार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 73 साल उम्र में है, 2 साल हो गया जेल में, ना बीमार है, अभी तक सर दर्द का गोली भी नहीं खाया उसने जेल में। शुक्र अल्लाह का, इसको कहते हैं लीडर। उसको देसी मुर्गा कौन खिला रहा है? क्या नवाज शरीफ खिला रहा है, आप भी भेजते हैं। मेरा बात सुनो, जेल का जो रोटी है ना वो भी उसको नहीं मिलते अच्छे तरीके से, बिजली भी नहीं है उसको, ठीक है। वो जो जेल में था, टीवी भी था, एसी भी था, जो सहूलत होता था उसने खुद ही नहीं खाया। देसी मुर्गा खुद ही नहीं, हमको मुर्गा बना के खा रहे हैं नवाज शरीफ, वो भी सोचो। हाँ, लाला भटक गया ना, शुक्री कर रहा है तुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेशुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। 2 वक्त रोटी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं नवाज शरीफ को नहीं मानता हूँ, चाहे जितने भी तुम मेरे उसको साथ दुख बहस कर होगा लेगा। कि मैं इनके लिए बीमार हुआ, हाय, मैंने हाय। अपने बच्चों को इनकी खिदमत पे लगा कितना दिया। खुशी मुझे होगा कि मेरा वजह से उसको दुख हो और उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। मर जाए। दुआ करो अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे ताकि तुम्हारे बच्चों की भी उसके बच्चे अल्लाह उसको जिंदगी देगा कि हम और भी जलील हो जाएगा। क्या बात है। वो जिसको तुम कह रहे हो ना वो लीडर है, वो जेल में है, उसने तो मियाँ साहब कहते हैं उस खलंडरे ने तो बेड़ा गर्क किया है। किसने? इमरान खान ने। और अल्लाह की बंदी, ये सोशल मीडिया को छोड़ो, उसका जैगो ने उसके टाइम में पेट्रोल कितना का था? वो मसनूई तरीके से रखा मसनूई था। तरीके से कोरोना में उसको मिल किस तरीके से चलाया, सारा मुल्क से आगे था। जब कोरोना आया था ना, किस तरीके ना उसने जो है ना, लोग टैक्स लगाते हैं उस चीजों के ऊपर, उसने पेट्रोल महंगा के बजाय 10 रुपए सस्ता किया। एहसास प्रोग्राम चलाया, ठीक है, लोगों को पैसे दे रहा था, घर में बैठा था, सेहत कार्ड दिया लोगों को। इधर जो है ना पनागाह था, अभी जाओ तुम ना देखो, उधर लाइन में गरीबी खड़े होते, पनागाह में जगह नहीं देते। सुबह जो है ना 6 बजे को उठा, 4 बजे 5 बजे को उठाते उसको, ऐसे तलाशी रह रहे जैसे मुजरिम अंदर जा रहे हैं। जो 80 से ज्यादा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट माजी पंजाब की माँ लाई है, सीएम साहबा लाई है, तुम्हारे कदमों पे भाई निशान। पंजाब 16 अरब रुपए खसारे में जा रहे हैं। किस चीज का बजट उसने अलाउंस किया? तुमने फिर मियाँ मुश्तबा चिदौरे मान के सुनहरी वो अल्फाज नहीं सुने, तुमने तारीख में जो सुनहरी रूप से लिखे जाने वाला बजट है तुमने नहीं सुना। ओ भाई वो नवाज शरीफ का चेले है और अकल का विल्ले है, समझ आ गया? वो नवाज शरीफ के समझ आ सिपाही गया। हैं। सिपाही इस तरह का नहीं होते, सिपाही मल्क का होना चाहिए, ठीक है। मल्क का सोचना है, नवाज शरीफ का नहीं सोचना है कि वो नवाज शरीफ का सिपाही है। वो इसलिए सोचता है, उसे पता है पाकिस्तान की खिदमत करता है इस उम्र में हाय भी। हाय, लंदन में लोग करते पाकिस्तान की खिदमत। पाकिस्तान का खिदमत एक बंदी ने किया, अभी भी जेल में। वो कह रहे कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, क्योंकि मेरा बाहर कोई जजीरा नहीं है। हाँ भी सोचा, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मिडिल क्लास, ठीक है। लेकिन उसने मुझे इतना शऊर दिया, इतना शऊर कि मैं अतातारत से अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ। इमरान खान ने दिया शऊर, ठीक है। वो इधर बसते, इधर मियाँ को बसा के इधर जा। बसते हो। इधर मियाँ को बसा। मैं इधर बसाऊंगा इंशाल्लाह। लाला जज्बात बात करते हैं, मैं समझ से बाहर आ गया यार। तुमको मैंने बताया सारे लोग इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं ना। एक दिन तुम्हारे पास में तुम्हारे एक वीडियो देखते हैं ना, जो तुम्हारे साथ बोलते हैं उसका नाम लिया करो, लेकिन मुझे खुद वो उसका नाम नहीं लिया करो। जो एक बंदा था, एक वो औरत था, तुम्हारे एक वीडियो मैंने देखा तो तुम्हारा जबान बंद हो गया था, फिर तो उसने सारी बातें की। अब देखिए अभी मैं तुम्हारे वीडियो देखते हो तो सारा इमरान खान ना खिलाफ है, लेकिन इमरान खान इंसान का इधर होते हैं। मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ। आप इमरान खान हैं। चले ठीक है, ये भी एक राय चलाई, लेटर का नहीं है। ये भी चलाना है। बात सुनो, हाँ, हम बात ये नहीं करते, हम मुल्क का सोचते हैं, लीडर जैसा भी हो। मेरी वाइफ की कॉल आ रही, मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। पैसे नहीं है पास, कोई ना कोई दूध लेके आना है या कोई ना कोई चीज़ घर के लिए लेके आनी है, मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। ये मैं यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहा, काम से आ रहा हूँ। इसके अंदर औजार है ना, कि इसके अंदर किताबें हैं, आपको पता चले। ये हथौड़ी है, इसके अंदर औजार है भाईजान, इसके अंदर किताबें नहीं है। ये वक्त आ चुका है, हम पढ़ते हैं।
आपके मिसेस की कॉल आ रही है, कॉल नहीं उठा मैं रहे? कॉल नहीं उठा रहा हूँ। आपको आके कोई दूध का कह देंगे या कर मेरी एक छोटी 6 माह की बच्ची है, उसके लिए दूध लेके जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। इससे बड़ी कौन सी बात है? कैमरा ऑन ईयर कह रहा हूँ आपको, हो सकता है मेरे घर वाले ये वीडियो देखें। भाईजान ये मुल्क के हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हादसा मजाक ये सारा कुछ अपनी साइड पे, पार्टी बेस अपनी साइड पे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुकी हैं। आज 6 माह हर की बंदा बच्ची के दूध के पैसे नहीं है आज भाईजान। कितनी देर काम की है? भाईजान काम किया ही नहीं है आज। मैं ये मार्केट बीटर रोड पे होता हूँ, आज काम ही नहीं है, मार्केट सुनसान है। घर से कितने फ़ोन आ गए अब तक? अब तक मुझे 4 से 5 आ गए होंगे, मैं भी। ये माई हाँ, ये हाँ। सारे आपके सामने हैं, मैं कॉल नहीं उठा रहा। घर क्या लेके जाएंगे फिर आज? अगले दिन के लिए दुआ करो, कल कुछ हो जाए। नहीं आज आप दूध लेके जाएंगे इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हालात हैं भाईजान, आपके सामने है सारा कुछ। ये सारे परेशान हैं, सारे जानते हैं सारा कुछ है। हर बंदा ही लोन लेके अपना काम चला रहा है, हर बंदा ही किसी ना किसी से कर्जा लेके अपना काम चला रहा है, हर बंदा ही परेशान है भाईजान। कोई बंदा यहाँ पे ये कब से आपने रविश अपनाई है कि भाभी कॉल करती हैं आप कॉल नहीं उठाते? कब से है ये सिलसिला? मेरी शादी को वैसे 1.5 साल हो गया है तकरीबन, ऐसे ही है तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। उससे पहले मैं काफ़ी बेहतर था, मैं जॉब करता था किसी जगह पे, तो वहाँ से उसके बाद मैं टर्मिनेट हो गया, रिज़ाइन नहीं किया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद जॉब लेस हूँ और मजदूरी कर रहा हूँ। और घर की कॉल नहीं उठाते? घर जाएंगे बुरा ना मानिएगा, लड़ाई तो नहीं होगी अगर बच्ची रो रही होगी? कोऑपरेट करती है वो। तो बच्ची को रात क्या देंगे? किसी ना किसी दोस्त से लेंगे, फिर किसी ना किसी से उधार लेंगे, यही है। फिर कल कोई काम करेंगे उसको रिटर्न करेंगे, फिर खुदा ना खासा परसों काम नहीं होता फिर किसी से लेंगे। यही चल रहा है, ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। और यहाँ पे आपको लगता है मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, हर जगह पे उनकी फ्लैक्सीज लगी हुई हैं, हर जगह पे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। मेट्रो बना रही है, मेट्रो के पीछे उनके स्टिकर लगे हुए हैं, हर जगह पे उनकी तस्वीर लगी है। अगली हुकूमत आएगी, करोड़ों पे का उन्होंने अरबों का खर्चा किया है, अगली हुकूमत आएगी वो क्या नहीं उतारेगी ये सारा कुछ? उनकी तस्वीरें नहीं उतारेगी, जो उसके खिलाफ आएगी नहीं उतारेगी, उतरेगी, फिर वो अपनी लगाएगी, अरबों का खर्चा फिर होगा। वो किसने देना है? वो भी हमने देना है भाईजान। कितने घंटे आज आप सुबह से कब तक, मैं ताकि मुझे एक आइडिया हो, एक आम आदमी कितनी देर सड़क पे रहता है? कितने घंटे से आप सड़क पे हैं? भाईजान मैं सुबह 10 बजे से घर से निकला हूँ, अभी तक सड़क पे, अभी 9-10 बज रहे हैं। और दूध के पैसे नहीं है? 1 रुपया भी नहीं कमाया? नहीं, आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। घर कहाँ है? दरोगा वाला। कैसे जाएंगे? बाइक पे। बाइक के पेट्रोल के पैसे हैं? अम्मी से लिए थे, सुबह 250 रुपये अम्मी से लेके आया था, पेट्रोल डलवाया था। अब कल का नहीं पता। पढ़े कहाँ तक हैं आप? किस क्लास तक पढ़े? 2nd ईयर। उसके बाद पढ़ाई भी छोड़ दी? जिम्मेदारियाँ बढ़ जा रही हैं, महीना कितना जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। महीना कितना कमा लेते हैं? अब जो दिहाड़ी पे कमाने वाला है वो महीने का हिसाब तो लगाएगा नहीं भाईजान, दिहाड़ी का हिसाब लगाएगा। मंथली क्या उसने हिसाब लगाना है? जो दिहाड़ीदार बंदा है उसने दिहाड़ी सोचनी है, मैं किसी तरीके 1000-1500। 1 साल में ये जो हुकूमत ने पिछला बजट दिया और अब बजट दिया, आखिरी सवाल, इसमें आपके हालात कितने बदले? हमारे कुछ नहीं बदले भाईजान, हम डाउन ही गए हैं, ऊपर नहीं आए हम। जो गरीब बंदा है ना वो गरीब तर हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है, वो पैसों में खेल रहे हैं। एक तल्ख सवाल पूछ लूँ, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बेटी को भूखा सोना पड़ा है? कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसे होने नहीं दिया। मेरे माँ बाप जिंदा हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो जाता है कि बंदे का दिल करता है कि अपने आप को कुछ कर लो। जब बंदा बेबस हो जाता है ना तब बंदा परेशान हो जाता है। भाइयों की सपोर्ट होती है, बड़े भाई होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि जब बंदा खुद परेशान होता है ना, जब कोई दूसरा सहारा नहीं होता, भाई भी कहता है यार तेनू भी पता है मेरी फैमिली उनकी नहीं कुआरी, फिर बंदे का दिल दुखता है कि यार मेरे पास भी कभी कुछ। जो एक बंदा चेक करने आता है वज़न रोटी का ना, वो चेक करने के लिए आता है ना, वो 3 अपना बड़ी गाड़ियों में आता है, ZX पे आता है, 3 ZX पे आता है, पीछे डाले होते हैं,
तो वो एक रोटी का वजन चेक करने के लिए आता है। आप खुद हिसाब लगाएं आगे हमारा क्या हाल होगा। समझदार हैं आप? हाँ जी, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं, वो सरकार है, अफसरशाही है, उनका हक है। वो कहते हैं हम इस मुल्क पे उनका ऐसा हक नहीं है। क्यों नहीं हक? भाईजान उनका ऐसा हक नहीं है। आप आउट ऑफ कंट्री में जाओ, किसका ऐसा हक है? कौन है जो प्रोटोकॉल में जाता है? एक सेकंड, वो सारा दुकान को देखा है कभी? वो अपनी साइकिल पे जाता है अपने ऑफिस में। तैयब दुकान को देखो आप, वो तुर्की का, ये इस्लामी ममालिक है। जो आप ही के साथ दिन रात इस मुल्क की शबाना रोज खिदमत कर रहे हैं, इस सूबे की खिदमत कर रहे हैं, अगर वो एक दो पराडो शराडो फॉर्च्यूनर वगैरह अपने साथ रख लें तो ये तो हमें खुशी में उनके कदमों पे निछावर कर देनी चाहिए। जी जी जी, हमने उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं माशाल्लाह। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है, उनका मेडिकल भी हमने बढ़ा दिया हुआ है भाईजान। तो जो मुल्क की खिदमत करेंगे हमें 80 करोड़ रुपया कर दिया हमने उनको। जो मुल्क की खिदमत करेंगे हमें उनको बढ़ाना चाहिए। जी जी, काफ़ी ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। जो खिदमत करते हैं ना भाईजान, वो दिल में बसते हैं, वो इधर होते हैं, इधर होते हैं। और कौन से सेंटी में लेना है? ये आप गलत, आप भी भटक गए हो भाईजान, हम नहीं भटके। अच्छा, पता आपके भी दिल को है। आप ऐसे ना लोगों के दिल की बात निकालते, पता आपके भी दिल को है। इधर इधर मियाँ क्यों नहीं बसता? कौन सा मियाँ? छोटा मियाँ, बड़ा मियाँ। वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ उधर ही रहे जहाँ के वो हैं। उन्होंने आपको मेट्रो नहीं दी? हाँ जी, वो चल रही है, हम देख रहे हैं। और ट्रेन नहीं दी? जी जी जी, चल रही है जी। और वो क्या करे? उनमें से आपके लिए? प्रॉफिट कितनी निकाली है, कितना गपला किया जो अंदर आया, ये बताएं जरा। उन्होंने एक धेले की भी करप्शन की हो तो वो सियासत छोड़ने को तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ सकते भाईजान। आप करप्शन साबित कर देना, वो कुरान उठा के फिर साबित कर देंगे कि हम बिल्कुल सच्चे पक्के हैं। आपको पता है जी, मुझे एक बड़े खास एक नून लीगी भाई ने कहा कि दुआ करो ये मायूस होके हमारे रवैयों से सियासत ना छोड़ दे, फिर मुल्क के सर पे कौन पाकिस्तान की आवाम के सर पे, इस बच्चे के सर पे कौन हाथ रखेगा? ये उनकी मेहरबानी है कि वो आज भी इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर वो वजीर आजम बने हैं, मेरी और आपकी खुशी के लिए बने हैं। जी, जी, वो जी। वजीर आला बनी है, मेरे और आपके लिए बनी है। काफी ज्यादा उनको- दुख है हमें। हाँ जी, काफी ज्यादा दुख है। और हमारे लिए उसने बड़ा अच्छा काम किया। ईद पे आपने देखा उसने मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया? पत्तियों के साथ, फूलों की पत्तियों के साथ ऐसे करके रोड साफ करवा दी, क्या गुलाब से धोया है ना? और क्या करे, और क्या करे, और क्या करे? हम तो मार रहे थे ना, वो इसकी जो कुर्बानी हमने की है ना, उसकी बदबू से हम मार रहे थे। बेसिकली मैं ना अभी जो फिलहाल मौजूदा काम कर रहा हूँ ना, सीलिंग का, पैनलिंग का काम करता हूँ। मैं गया हूँ कोट लखपत जेल में ना काम करने के लिए। उसके साथ अपार्टमेंट है, वो उसको पुलिस वालों को दिए हुए हैं। भाईजान पूरी कॉलोनी में ना एक भी मैंने बिजली का मीटर नहीं देखा होगा। डायरेक्ट तारे लगी हुई है, डायरेक्ट। कहाँ पे? कोट लखपत, ये पीछे ही है, साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं। आप चले जाएं, उसके बिल्कुल जेल के साथ कॉलोनी है जो पुलिस वालों को दी। मैंने पुलिस वाले के घर जाकर काम किया हुआ है। भाईजान पूरी कॉलोनी में एक भी मीटर नहीं लगा हुआ बिजली का। डायरेक्ट तारे लगे हुए हैं, 1.5 टन के एक कमरे के अंदर एसी लगे हुए हैं। उसके बिल कौन देता है जी, ये बताएं। आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे? भाईजान मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे साथ। पंजाब पुलिस तो आपकी मामन और आपकी मददगार है। भाईजान आप आए मेरे साथ, मैं झूठ तो ऑन ईयर कैमरा में आपको बता रहा हूँ, आए मेरे साथ। कहीं और मीटर लगे हो, आपने कुछ और देखा हो? भाईजान मैंने उनसे खुद पूछा है, वो क्या कहते हैं? उनके बेटे से। उन्होंने कहा भाई ये डायरेक्ट लगी हुई है, हमें बिल नहीं आता। हो सकता है खिदमत करते हो, चोरों को पकड़ते हो, रिवॉर्ड में दे दियो ये। जी जी जी, उनको देना है। हम जो खिदमत कर रहे हैं ना, हम आप अपनी जिंदगी की खिदमत करते हैं और किसी की खिदमत नहीं करते। आप अपनी जिंदगी और शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने नाजुक कंधों पे पूरा मुल्क उठाया हुआ है ना, उनकी हाथ जोड़ के ना विनती करते हैं कि ये नाजुक कंधों से ना किसी मजबूत कंधे वाले को ना दे दो, वो जो उठा ले। आप अपने नाजुक कंधों से नीचे उतार लो, आपकी मेहरबानी। हाँ मेहरबानी, किसी और को आने दो ना, कोई और हुक्मरान आ जाए, कोई और आ जाए जो बड़ा लीडर हो, कोई नया चेहरा है भाईजान जो डेवलपमेंट लेके आए। हमजा साहब आ रहे हैं, आपी आ रही है, बिलावल आ रहे हैं, और केरे चेहरे चाहिए ने? नहीं नहीं, खानदान जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਸਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪੀ ਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਲੋਰੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਢੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ नहीं निकलेगी इस मुल्क का कोई हल नहीं। आवाम जिन्नी देर तक खुद जिस आवाम निकली है ते आप ही आई है, आवाम निकली है ते किनू मियां साहब आए ने, सरदारी साहब आए ने, शहबाज साहब आए ने, तुसी ले आए हो उन्हां नू। एक अक्तूबर नू आवाम नू मियां साहब नहीं ले आए। आवाम निकली है कि नहीं निकली है? पढ़ो 5000 चलिए यार, पढ़ो 10,000 चलिए यार, जलसे से जाना हो गड्डी खलोती 2 घंटे बाद आई। निकली नहीं, असल में आवाम अंदर गई है तो आप ही आई हैं। समझी इस बात को, आवाम अंदर गई है तो आप ही बाहर आई हैं। आवाम के ऊपर ही आई हैं, वो आवाम के ऊपर चढ़ के आई हैं, पैर रख के आई हैं। हाँ जी, और पैर रख के फिर ऊपर आई हैं और आवाम को दबा दिया, आवाज दबा दिया। जो बोले अपना घड़ा खोले, जरा बोले वही कुंडा खोले, वही साहब देते हैं। ऐसी बोले तो कुंडा खोले जाए जी, यालो शोर होने लग गया। हमारी आवाम टोटली कोई 25 करोड़ इतनी आवाम है, उसके अंदर आप ये लगा लें कोई 1 करोड़ भी सरकारी मुलाजम नहीं है, और बाकी 24 करोड़ जो हैं जो सिविल, हाँ जी, जो बाकी 24 करोड़ हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 20 में 25 में 30 में, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं? हर घर का बिल 5,000 6,000 बिल, इससे कम नहीं है। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर जाए इसका कौन जिम्मेदार है? 200 पे डबल टैक्सीज है, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई सवाल करे ना कोई जवाब ले, बस चुप करके इनके आगे चलते रहें, जैसे करें हम एग्री हैं जी, हम आपके साथ हैं। ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना, हम भी पढ़े हैं, हमें भी शऊर है, हमें भी इल्म है इस चीज़ का कि मामलात क्या हैं, कैसे चलते हैं, कैसे नहीं। अब हर चीज़ इंसान को नज़र आती है, नज़र भी आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम फिर भी चुप हैं अपने हक के लिए, सबसे बड़ी बात है हम खुद गलत हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं जी, हमने ऐसे कर देना ऐसे कर देना, इससे कोई हल नहीं है इस चीज़ का। मेरे एक सवाल का जवाब दे, जब आपका मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था उस वक्त इस मुल्क को किसने बचाया? हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, कब हो रहा था? जब शहबाज शरीफ साहब ने 10 अप्रैल 2022 को अपने नाजुक कंधों पर इतनी सेंसिटिव जिम्मेदारी ली। ये देखें 78 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, ऐसे ही है। और 78 ईयर के अंदर अभी तक हम अपने कर्जों से बाहर नहीं निकले, तो डूब तो हम इतने अरसे से रहे हैं, ये इन्होंने आके नया तो हमें खड़ा नहीं किया। खड़ा करने का मकसद है कि जो हमें कर्जों से बाहर निकालें। हमें हमारी आवाम का सोचें जी, आप अपने लिए कारोबार करें, कुछ करें, हम आपको पैसे देते हैं। और अलबत्ता हम ही इनके टैक्सेस के इनको भी चला रहे हैं, कर्जे भी उतार रहे हैं, मुल्क को हम चलाएं, कर्जे भी उतारें, और सैलरीज भी जो है प्राइवेट बंदा जो है वो मर मर के जिए। बजट के साथ साथ पेट्रोल भी महंगा हुआ है, 4 रुपये 80-85 पैसे और डीजल तकरीबन 8 रुपये के पास। आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता था? हुकूमत का शुक्रिया अदा करना सर जी, ये महंगा हुआ है हमारे लिए, ये गरीब आवाम के लिए महंगा हुआ है, ये बड़े अफसरों के लिए महंगा नहीं हुआ। बड़े अफसर क्या है, उन्हें हुकूमत की तरफ से फ्यूल मिल रहा है, ये हमारे लिए महंगा हुआ है। वो तो याशियाँ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें 600% बढ़ी हैं, ये गरीब आवाम है उनकी 5% 10%, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं है। और हमारी जो तालिबीन है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बढ़ गई है, अकेडमीज़ की फ़ीस बढ़ गई है, स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है। फ़ीस तो गरीब बंदा रहा है ना, हमारी 50,000 से ऊपर सैलरी चल रही है, हमारे पे इनकम टैक्स लगा देती है, ये भी टैक्स लगा देते हैं। कौन कौन से टैक्स हम दें? फीस तो गरीब आवाम जा रही है। नहीं छोटे भाई, गरीब कैसे पिसता जा रहा है? जब आपकी इनकम बढ़ी है तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं ना। देखिए ना, आपके बुजुर्ग, आपके वालिदैन इतना कमा रहे हैं,
तो उन्होंने टैक्सीज देखिए ना, अगर जब मिसाल के तौर पे एक घर में एक बंदा कमाने वाला है, उसकी बेसिक सैलरी 37,000 रुपये लगाई है और घर में 8 जाने खाने वाले हैं, तो 37,000 में बिल देगा, अपने घर के राशन पूरे करेगा, अपने घर में क्या क्या करेगा। 40,000 लगाई है पंजाब में, 40,000 भी लगाई होगी, लेकिन आजकल बिल इतने आ रहे हैं कि इंसान के बिल अगर 200 यूनिट से चले 10,000 12,000 बिल आ जाएगा। इंसान के घर में 8 खाने वाले होंगे, 5 जाने पढ़ने वाले होंगे, वो क्या बंदा पूरा करेगा अपने घर के हालात, अपने घर के कैसे हालात चलाएगा। आजकल हर चीज़ महंगी है, क्या करे बंदा। ऊपर से फ्यूल फिर बढ़ गया है, ऊपर से बिजली पे टैक्स लगा दी, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए, क्या 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 करे बंदा। इतने दुखी क्यों हो आप? दुखी नहीं है, ये हालात ने हमारे दुखी बना दिया हमें। हम अपनी स्टडी, मैं स्टडी करता था, स्टडी स्किप कर दिया, BS कर रहा था, इतनी स्टडी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा मैं अपनी, इतने जितने टैक्स लगा दिए ना। वाली साहब की सैलरी तो नहीं है कि हमारे वो नहीं अफोर्ड कर सकते, खुद भी जॉब करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी स्टडी बंदा कंप्लीट नहीं कर सकता तो बंदा क्या करे। BScs कर रहे थे जी, और मैंने वो भी स्किप कर दिया दरमियान में, सेकंड सेमेस्टर में से छोड़ दी। दिल नहीं करता पढ़ने को या महंगाई? दिल तो बहुत करता है, किसका दिल नहीं करता स्टडी करने को, स्टडी छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि बंदा क्या करे अपनी ज़िंदगी के लिए, बंदा क्या करे। ये भी यही तो है ना कि बंदा अपना घर चलाए, स्टडी करे, या बंदा अपने घर वालों को देखे, घर वालों का पेट पाले, कैसे करे बंदा। स्टडी नहीं करते तो क्या करोगे फिर? स्टडी नहीं करेंगे तो, लेकिन अब पार्ट टाइम कोई जॉब करेंगे, फिर बंदा कोई अपने घर का निज़ाम तो चलाएंगे ना, घर के जो हुकूमत टैक्स लगाए टैक्स तो पूरे करेंगे ना, हम अपने बिल वगैरह तो देंगे ना, फिर जाके हमारी स्टडी के फिर बाद। अब स्टडी के बारे में हम सोच नहीं सकते, स्टडी के बारे में तो हम अब सोचना ही मुश्किल है हमारे लिए। अब तो अल्लाह को गवाह बना के कोई इस वजह से सिर्फ पढ़ाई छोड़ी है? अल्लाह का गवाह बना के इसलिए छोड़ा कि घर के हालात नहीं जिस वजह से पूरे हो रहे थे, टैक्सेस की वजह से, जिस वजह से हमने अपनी स्टडी छोड़ दी है। दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। एक तलीम तो हमारे पास हथियार है स्टूडेंट्स के पास, जो बंदा तलीम हासिल करे, जो बंदा किसी पोस्ट पे पहुंचे। जब हमारे पास तलीम ही नहीं होगा हम किस पोस्ट पे जाएंगे ना, हम बाहर के ममालिक जा सकते हैं ना, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, हम क्या काम करेंगे बाहर, इधर बाहर ममालिक भी जाके हमारे पास एक्सपीरियंस ही कोई नहीं, कोई ना हमारे पास स्टडी है, इन्फॉर्मेशन है। आजकल तो हालात ऐसे कि बंदा एजुकेशन, बंदे को जॉब नहीं मिली, डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं लोग। आपने BScs छोड़ दिया, मैंने सेकंड सेमेस्टर स्किप कर दिया मैंने। वालिद साहब की तरफ से सपोर्ट नहीं है? उनकी तरफ से सपोर्ट जब तक थी तब तक पड़ा है, अब नहीं देख, अब बंदे हम खुद बड़े हो गए, पता लग रहा है घर के अब नहीं चल सकता निज़ाम, जितनी उनकी सैलरी है, मतलब जो मुल्क के हालात हैं, अब सारी ज़िंदगी माँ बाप के हाथों पर बैठ के तो नहीं खानी है हमने, खुद भी तो कमानी है ना कुछ तो करना है, तो हम कुछ करेंगे ना। फिर अब स्टडी करेंगे तो फिर क्या करेंगे बाद में। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? मैट्रिक में मेरे 860 थे। फर्स्ट डिवीजन में किया माशाल्लाह जी। FSC में कितने थे? FSC में मेरे 660 थे मेरे ख्याल से। आप अब एवरेज रहे हो यार जी, फर्स्ट डिवीजन लेते रहे हो जी। तब आगे छोड़ दी पढ़ाई? आगे मैंने सेकंड सेमेस्टर शुरू किया था, मतलब BScs कंटिन्यू की थी, सेकंड सेमेस्टर अभी स्किप करनी पड़ गई। कितना एक्सपेंडिचर है इसका? स्पेंड तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जिस अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो फिर हमने आगे बाद में करने की कोशिश नहीं की आगे, बाद में उसकी फ़ी हुई जमा तो बार की नहीं दोबारा हमने। आजकल क्या कर रहे हो? आजकल तो फ़िलहाल अभी एक जो कंपनी है उसमें फ़िलहाल अभी जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल। कितनी तनख्वाह है? उसमें अभी बेसिक 37 है। लेकिन उनको को पंजाब में तो 40 लगाई है। वो प्राइवेट अदारे हैं, प्राइवेट अदारे कहाँ पे लगाते हैं? प्राइवेट अदारे अगर हम ऐसे उनको करेंगे, वो कहेंगे आप जाओ, हम कोई दूसरा बंदा रख लेंगे। उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी तो गरीब आदमी के लिए नहीं है ना। वालिद साहब क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। कितने भाई हो? एक ही भाई हूँ। बहनें कितनी? 5 बहनें। बहनों की शादी हो गई? नहीं, अभी किसी की भी नहीं हुई। बहनें क्या करती हैं? सारी स्टडी करती हैं। वो छोटी जो है मेरे से, जो छोटी वो BCom कर रही है, उससे छोटी जो है फर्स्ट ईयर में, उससे छोटी जो 9th में है, उससे छोटी 7th में है। बड़ी सिस्टर है वो स्टडी छोड़ दी है। तो कोई बहनों की शादी का सिलसिला चल रहा है कि वो भी वालिद साहब? अभी कोई निज़ाम नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन रिश्ते अभी कोई अपना साहब भी नहीं कोई है अभी। निज़ाम कैसे करना है, क्या निज़ाम है? घर अपना किराए का? घर अपना अल्हम्दुलिल्लाह। खुद पढ़ाई छोड़ दी आपने? जी। वालिद साहब कहते हैं पढ़ ले, या वो तो मुझे कहते रहते हैं पढ़ लो, लेकिन अब खुद देखता हूँ ना, वो तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब देखें ना, खुद देखता हूँ जबकि घर का निज़ाम नहीं चल सकता, तो फिर खुद ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना, कि नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5 बहनों का इकलौता भाई, वो कहता भाई मैं अपने एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर सका, इसलिए मैंने स्टडी छोड़ दिया। ऐसे बच्चों को पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है
उनकी अव्वलीन ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे नौजवानों को रोज़गार भी दें और इनको पढ़ने का मौका भी मिले। मैं तो आपकी आवाज़ बन सकता हूँ। ऐसे ही है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े आपके लिए सानिया करे। आमीन।